Good evening and welcome everyone to this live session on Indian polity. This is our fourth class today. So in today's class we are going to cover preamble to the Constitution of India. Preamble में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं Constitution के लिए, UPSC prelims के लिए, Constitution को समझने के लिए this topic is very important. So let us wait for 1 or 2 minutes for the latecomers to join in and then we shall start. Preamble होता है जैसे एक introductory part of book. It's like a preface to any book. So preamble की यही significance है. In order for us to understand the constitution in a better manner, preamble is like a guiding post. Guiding post होती है ना जो ये बताता है कि यहाँ जाना है और वहाँ जाना है, उस तरह से, ठीक है. Now preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement. It's like a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principles of the document, and it indicates the source from which the document derives its authority, meaning the people. The hopes and aspirations of the people as well as the ideals before our nation are described in the preamble. Okay. Vinod will tell you about optional subject कैसे choose करें. It may be considered as the heart and soul of the Constitution. Preamble can be referred to as the preface, which highlights the entire Constitution. Preamble is like a preface which highlights the entire Constitution. Clear? All right. सो बेसिक चीजें जो है प्रियम्बल के बारे में वो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो. हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट कैन बी रेफर टू एज द प्रेफेस. इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. फैक्ट टू बी नोटेड अलोंग द वे. आने दो अभी और लोगों को आना. ऑडियो कैसे नहीं है विनर? ऑडियो तो है यार, वरना ये लोग तो अभी तक हल्ला बोल देते. Shall we proceed? Now, we the people of, read each and every word carefully. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign. These are the adjectives. Adjective 1, adjective 2, adjective 3, adjective 4, and then this is a republic. This is what we are. आर वी सॉवरेन. सॉवरेन के कितने मतलब होते हैं? सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. सॉवरेन का नेशनल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशन स्टेट दैट इंडिया इज, उस हिसाब से वी आर अ सॉवरेन स्टेट. वी कैन डिसाइड आवर ओन पॉलिसी. वी आर इंडिपेंडेंट. वी आर नॉट अंडर एनी अदर कंट्री लाइक ब्रिटिशर्स और यूएसए. वी कैन मेक आवर ओन पॉलिसी. Factual part. Analysis will come within next half an hour. Socialism. Socialist क्या होता है? जहां पे means of production are owned by the government. Means of production are owned by the society as a whole. हम पहले socialist नहीं थे, right? नेहरूवियन आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म के अंडर होने की वजह से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इकोनॉमी के अंडर गुलामी जो हमने 200 साल की काटी, उसकी वजह से सोशलिस्ट हमने अपनी कंट्री का पैटर्न चूज किया. अमेंडमेंट के जरिए ये वर्ड इंसर्ट किया गया. ओरिजिनली दिस वर्ड वाज नॉट देयर. सेक्युलर. सेक्युलर मींस धर्म निरपेक्ष. वी डोंट प्रीच वन पर्टिकुलर रिलीजन. द इंडियन स्टेट, द नेशन स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर ऑफिशियल रिलीजन. इवन दो हिंदूज आर इन मेजॉरिटी इन इंडिया, even though Hindus are in majority in India, but Hinduism is not the religion of the state. We give our from government of India can give various type of subsidies from the consolidated fund of India. Government can give various types of subsidies from consolidated fund of India. Okay. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट बहुत सारी, जैसे कि हज सब्सिडी, सब्सिडीज आर गिवन टू ऑल द रिलीजन्स. अमरनाथ यात्रा, राइट? लाइकवाइज
बकरीद की भी छुट्टी होती है और दिवाली की भी छुट्टी होती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं मिलेगी। वो अलग बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है जो मैंने तुम्हें बताया, दिस इज द थियरी, डेमोक्रेसी एट वर्क, द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन पावर इज प्रो हिंदुइज्म। हिंदुत्व आइडियोलॉजी चल रही है ना, हिंदुत्व। आरएसएस की जो एफिलिएट पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता में है, बीजेपी इज हिंदुइज्म ओरिएंटेड पार्टी। तो उसमें क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या हो रहा है, राइट? लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थियोरेटिकली ये कहता है कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक, वेयर द पीपल विल चूज डिमोज, डिमोज मीन्स पीपल, डेमोक्रेटिक रूल। There are 2-3 types of rules: democratic, bureaucratic. Bureau means rules oriented, okay? Then technocratic, where technicians, where the engineers, where the specialists in the field would run the government, okay? So these type of things are there. Clear? Technocrat. Clear है सबको? बेसिक मीनिंग। कभी अभी आगे चल के हम क्वेश्चंस देखेंगे तो इसीलिए मैं पहले से इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कितने एडजेक्टिव्स हैं? तुम लोग अब मेरे स्टूडेंट हो, पहले ऐसे होता था हाँ हाँ ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, एसएसएसडी, 4 चीजें। सॉवरेन, ये लिखा हुआ है, वो गांधी जी के साथ एनसीईआरटी के साथ में लिखा हुआ है, लेकिन आज तक याद ना हुए है ना, तो अब याद कर लो इन्हें। नाउ आगे चलते हैं। जस्टिस, कितनी प्रकार का जस्टिस? जस्टिस social, economic and political. Dr. B.R. Ambedkar had said that political justice was brought about at the time of independence itself by giving you and me, giving everyone fundamental rights. But Dr. B.R. Ambedkar said political justice will be futile, will be of no use until and unless we ensure social and economic justice. Justice, why the 3 forms of justice are mentioned here? Why 3 forms of justice? क्यों 3 forms? 3 forms of justice because imagine a scenario if a गरीब chap, होटल हयात या हायत बोलते जो भी बोलते हैं, ठीक है, ये गरीब आदमी के लिए वाहयात बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके डोर पे लिखा है राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड। क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस, उस गरीब बच्चे के पास जो बर्गर किंग के बाहर खड़ा तुमसे बर्गर मांग रहा है ना, दे 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 करके, है ना, दीदी दे देना, भैया दे देना, वो जो बच्चा है, वो बच्चे के पास पॉलिटिकल राइट तो है, वोट वगैरह उसके पास भी है, वो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, वोट उसके पास भी होगा जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके पास सोशल और इकोनॉमिक, उसकी जेब में पैसे नहीं हैं, इसलिए वो दरवाजे के बाहर खड़ा है और तुम दरवाजे के अंदर। समझ में आया? तो विदर पॉलिटिकल जस्टिस, what the hell, to of what use is the political justice, of what use is such a political justice if it is not leading to social and economic justice? आज मैं गरीब हूं, मुझे बोला जाएगा गरीब आदमी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, लेकिन जब तक मैं सामाजिक लेवल से, आर्थिक लेवल से अमीर नहीं हूं तो मेरे वोट को खरीद लिया जाएगा। इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज वेरी राइट। पॉलिटिकल जस्टिस, अगर सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दोनों नहीं होंगे, तो पॉलिटिकल जस्टिस बिक जाएगा। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तुम देखते हो वो फॉर्च्यूनर में आया नेता सफेद कुर्ता पजामा पहन के, तुम्हें पता है कि वो चोर है, तुम्हें पता है कि वो क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी उसे वोट दे बैठते हो। क्यों? भौकाल। समाज में हमने कभी देखा ही नहीं फॉर्च्यूनर 10 एक साथ चलती हुई। इकोनॉमी वाइज वो ज्यादा अमीर लगता है तो दे दो वोट। समझ में आया? ये तो सिर्फ एक बहुत ही छोटे लेवल पे एग्जांपल्स हैं, तो आज के बाद तुम ये कभी भूलोगे नहीं। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बात तुम्हें याद रखनी है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस तभी फायदा करेगा पॉलिटिकल जस्टिस जब ये दोनों होंगे। सोशल जस्टिस की बात करूं तो जब तक वर्ना सिस्टम रहेगा, आप एक शूद्र को, एससी को वोट दे दो, लेकिन उसको बिहार के किसी विलेज में धमकाया जाएगा, उन शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के, हमारे भाई बहनों की उस जमात को, उनके कांग्रीगेशन को ये धमकाया जाएगा, अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो तुम्हारी उंगली काट दी जाएगी।
पॉलिटिकल जस्टिस इज ऑफ नो यूज विदाउट सोशल जस्टिस। समझ में आया? इसका एक एक मतलब है यहां पे। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट। तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यहां तक सोच लिया कि हमें लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब इस देश को चाहिए आजादी, वो वाला जो कन्हैया कुमार ने नारा लगाया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उसे रीआइटरेट किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज रीआइटरेटेड द सेम पॉइंट इवन टुडे, सेइंग दैट Farooq Abdullah, the Jammu and Kashmir political leader who has been the chief minister 3 times, if he wants to express his dissent against abrogation of Article 370, he cannot be labeled he cannot be brandished as a criminal, as a sedition, as a Deshdrohi under section 124A of IPC. You have got the liberty of thought, expression, belief, faith, not only of religion or anything, but of every type. M.F. Hussain could paint the paintings, nude paintings of Indian deities. That is wrong. PK can make a movie doing a mimicry or mocking about Indian state of religious affairs. Right? In the PK movie, oh my God movie, these type of things. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship is there, subject to certain limitations. Clear? Equality, equality of status and of opportunity. Everybody should be having equal opportunity to grab the government position. 712 vacancies हैं, सभी के लिए हैं, और अगर डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं है तो उसके लिए स्टेट उनको बराबर लाके खड़ा करने के लिए, ये घड़ी वाला हाथ डिसेबल्ड लोगों का है, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के आधार पे रिजर्वेशन क्रिएट किया जाएगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये काम सभी लोग करते हैं, आप और हम भी। कभी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को देख के या हिंदू को देख के घूरने लग जाते हैं, नहीं करते हम। पॉलिटिशियन भड़काता है। फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, sense of brotherhood. Everybody preaches these things. Everybody somewhere deep inside heart, we treat human beings as human beings first, and then we treat them as persons of a religion different from ours. But politicians, except for politicians इसमें हमारी लड़ाई करवाते हैं। Now justice, liberty, equality. In our Constituent Assembly, we had taken the pledge on 26th day of November to adopt, enact and give ourselves this constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले यही सबसे पहले यही पेजेस दे रखे हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि अगर कुछ भी होगा तो पहले, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी, कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वी विल रिजॉर्ट टू दिस। Clear? Sovereignty. Let us understand them one by one. Sovereignty, basic meaning is supreme power. The word sovereign implies that at the national level, it implies that India is not under the control or pressure of any other outside force, but an independent state. Okay? Just 1 minute. ठीक है, इंडिया इज नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ एनी आउटसाइड फोर्स। ठीक है, कोई ब्रिटिश पावर या कोई कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हमारी पॉलिसी गाइड नहीं कर सकती। ये तो है फैक्चुअल मीनिंग, बट ऐसा हो रहा है क्या? आए दिन डोनाल्ड ट्रंप या आज जो बाइडेन जो हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, वो हमें बोलते हैं फार्म लॉज पास करो। स्टैटिक पोर्शन मैंने समझा दिया, जो थ्योरी है वो ये कहती है कि हम अपनी पॉलिसी वगैरह खुद डिटरमाइन करेंगे, बट यूएन के कंधे पे रख के यूएसए बंदूक चला रहा है। डब्ल्यूटीओ को बोला जा रहा है इंडिया को बोलो लिबरलाइज करे ट्रेड को, जो वो चाहते हैं वो करे। ठीक है, जो वो चाहते हैं इंडिया को वैसे रिफॉर्म्स कराए जाएं, इवन इफ दोज रिफॉर्म्स आर नॉट इन राष्ट्रहित, इवन इफ दोज रिफॉर्म्स आर नॉट इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया।
नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया क्या है? अब मोदी ये कहते हैं कि मुझे मैंडेट मिला है, मैं ये कहता हूं कि मैं इंडिविजुअल सॉवरेन हूं। सॉवरेनिटी के दो मतलब है, नेशनल सॉवरेनिटी कि मेरा देश किसी की नहीं, किसी से नहीं दबेगा, किसी की नहीं सुनेगा, मेरे देश को जो राष्ट्रहित में अच्छा लगता है वही मेरा देश करेगा। इंटरनल इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया विल गाइड इंडियाज external policy overtures. Internal interest of the people of India, farmers of India, will guide India's external interest. Constitution of India shall guide what posture is India going to take in the foreign space, in the global benches of governance like United Nations, WTO, UNFCC और blah blah blah. लेकिन आज क्या हो रहा है? बाहर से आवाज आती है कि तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, तुम ये रिफॉर्म लेके आओ तो तुम्हारे पार्टी के स्विस बैंक में नहीं तो किसी और किस बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे। बिजनेस लॉबिंग, हम इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी वी हैव आउटसोर्स्ड द पॉलिसी मेकिंग। इट मींस दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम पावर रेस्ट्स विद द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर? सोशलिस्ट, ये समझ में आया? इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सॉवरेन क्या है कि भाई मैं हूं, मेरे जैसे 100 करोड़ 140 करोड़ भारतीयों को मिला के सॉवरेनिटी बनी है। मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी इंडिविजुअल सॉवरेनिटी अलग है। तुम मुझे ये गाइड नहीं कर सकते कि मैं मदरसा में पढ़ूं या स्कूल में पढ़ूं या खालसा स्कूल में पढ़ूं या रॉकेट उड़ाऊं। मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, प्रोवाइडेड मैं किसी और के इंटरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचा रहा। मैं अपनी कंट्री के फॉरेन रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को ठोस नहीं पहुंचा रहा, नुकसान नहीं कर रहा। इफ आई एम नॉट अफेक्टिंग, इफ वट एवर आई एम डूइंग इज नॉट अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू कम्युनिटीज, if whatever I am doing is not creating any conflict between two countries, then it's fine. If I am not obstructing the government's functioning, it's fine. I have a right to do whatever I want. National sovereignty, individual sovereignty. समझ में आया? Socialist pattern of society means that basic criterion for determining the lines of advance, प्रगति की राह जब पे चलते हुए means of advancement, कि हम economic advancement तो करेंगे but the lines of advancement shall be socialistic. Social gain should always guide that, not the private profit. And that the pattern of development and the structure of socio-economic pattern of development and the structure of socio-economic relations should be so planned that they result not only in the appreciable increase in GDP and employment but also in greater equality in the incomes. That is why in today's newspaper Haryana government says that reservation should be made available to the in the private sector jobs also, but that is another thing. यहां पे लिखा है, दोबारा पढ़ो मेरे साथ, जो सो रहे हो जाग जाओ फटाफट। Socialistic pattern of society means that basic criteria for determining the lines of advancement must not be private profit, but it must be social gain, and that the pattern of development and the structure of socio-economic relations should be so planned that they result not only in the appreciable increase in national income and employment, but these opportunities or this national income etc. should be equally distributed. समझ में आया? Clear to everyone? Say yes, everyone must say yes. अब मैं आगे इसको जो समझाऊंगा तभी फायदा है।
क्लियर? यहाँ पे पता है क्या लिखा है कि हम अगर मेट्रो रेल बनाएंगे या हम अगर कुछ ऐसा टीवी चैनल या कुछ लेके आएंगे ना, तो मीन्स ऑफ एडवांसमेंट ऐसे होंगे। तुम्हें मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, तुम ध्यान से समझना। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ये सब समझ में आ जाएगा कि क्या बवाल चल रहा है कंट्री में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही प्यारी चीज़ है, उन्होंने ये सब पहले ही सोच लिया था कि ये नेता लोग जो हैं, भले ही भारत आज़ाद हो रहा है, सफ़ेद गोरे वाले चले गए, काले वाले आ गए, अभी भी हम लोग बिके हुए हैं। कैसे? जब कांग्रेस पार्टी ने, या जब तुम्हें ये बोला जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो या कुछ, तुम्हारे पिताजी की औकात है या किसी और के पिताजी की औकात है कि फैक्ट्री लगा ले? नहीं, है ना, कि ई व्हीकल्स बेचेंगे। जब इन्होंने सेट टॉप बॉक्स वगैरह अपनाया, इन्होंने बोला 2013 में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सब एक जैसे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब चोर है, मैं बोल रहा हूँ सब एक जैसे हैं। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा, कल को ये वीडियो वायरल हो जाए जब मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा या जो भी होगा, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये क्या समझते हैं कि सब चोर हैं या सब एक जैसे हैं। दोनों में बातों में डिफरेंस है। टीवी मैंने जब लगाया, उससे पहले अच्छा खासा मेरा एनालॉग टीवी चलता था, वो तार आती थी, है ना, और हम 200-250 रुपये केबल टीवी ऑपरेटर को देते थे, और वो केबल टीवी ऑपरेटर भी हमारे वालों लोगों में से ही कोई एक होता था। अगर रात में टीवी भी नहीं चलता था, सभी घरों में ऐसा होता था, वी वुड गो टू हिज प्लेस एंड विल टेल हिम दैट टीवी नहीं चल रहा, ही वुड सेंड वन ऑफ द टेक्नीशियंस कि केबल क्लियर नहीं चल रहा, वो स्नो आ रही है ना। इन्होंने बोला कि केबल टीवी की जगह, एनालॉग टीवी की जगह, एनालॉग टीवी कनेक्शंस की जगह अब सेट टॉप बॉक्स वाला टीवी, डिजिटल टीवी वाला कनेक्शन जरूरी होगा। ठीक है, अब किसके पिताजी की औकात है? डज एनीवन whosoever is watching the session or whosoever is preparing for UPSC, do we have the capacity to invest in something like Tata Sky or to start our own cable TV network, पैन इंडिया और पैन पंजाब और पैन हरियाणा और पैन यूपी और पैन मध्य प्रदेश और पैन तमिलनाडु? नो। सन टीवी वो अलग बात है, वो दयानिधि मरन और वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं। इन्होंने लाइंस ऑफ एडवांस कुछ ऐसी कर दी कि 5-6 बड़े प्लेयर्स होंगे, या तो वो अदानी है या किसी और की, चलो छोड़ो, या वो अदानी है या अंबानी है या फिर कोई और है, ठीक है। आज हमारे बीच में से कोई जो केबल टीवी वाला निकलता था, वो अब नहीं निकल सकता। सिटी केबल वगैरह जैसी चीजें आती हैं, बट वो उतना बड़े लेवल पे नहीं है। हर कोई ये सेट टॉप बॉक्स डब्बा लगवा के बैठ गया, ठीक है। किसी ने सोचा कि 1800 रुपये हमने किसको दिए? टाटा को। क्यों दिए? क्योंकि वो बॉक्स लगा रहे हैं। हमने चाहा था कि आस्था, श्रद्धा और दिव्य चैनल, इतने सारे चैनल हमें चाहिए। हमने सोचा था कि पंजाब में बैठे मुझे मराठी चैनल दिखाया जाएगा या तमिलनाडु में वाणक्कम सुनाया जाएगा, नहीं सुनना मुझे, फिर भी मेरे ऊपर थोपा गया। क्यों? क्योंकि पैटर्न ऑफ सोसाइटी, दैट बेसिक क्राइटेरियन ऑफ डिटरमाइनिंग द लाइंस ऑफ एडवांसमेंट आर बीइंग गाइडेड टुडे by private profit, because this private profit will give some share of this private profit to the political party in power. This political party in power will return to power again to make the sovereign again even more powerless. कोई भी चीज देख लो, पहले माई नेबर यूज टू बी देयर, ही वॉज अ रोड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, वो 25 किलोमीटर का ठेका लेते थे, 25-50 किलोमीटर, जितना उनकी हैसियत में आता था। Now the thekas, the contracts for the roads are being given to big companies, GMR, again capitalism. I'll tell you 20 companies and your entire life revolves around those 20 companies in India. Reliance से जीते हो, Reliance से मरते हो। अभी तो Reliance कम है। Your reliance on Reliance is going to increase in the coming times. Cradle से लेकर grave तक तुम्हारी लाइफ टाटा के अराउंड घूमती है। ऐसा तो यहां पे नहीं लिखा, यहां पे तो ये लिखा है कि प्राइवेट प्रॉफिट नहीं, सोशल गेन इसको गाइड करना चाहिए। समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या है? टाटा की थाली में खाना खाते हो, टाटा का ही नमक होता है, टाटा का ही गाड़ी होती है, नैनो या कोई और, टाटा ही सब कुछ कर रहे हैं। टाटा मैकग्रॉ हिल की पहले बुक पढ़ते थे, अभी टाटा ने ब्रेकअप कर लिया। टाटा से ही खाते हो, पढ़ते हो, उठते हो, चलते हो, और टाटा से ही टाटा करके संसार से चले जाते हो। गलत नहीं है उसमें कुछ, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स आ जाता है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? देखो, कार्ल मार्क्स की कहानी बहुत दुखद है, थोड़ा ध्यान से सुनना। बेचारे की गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई थी, तो तब से वो फिलोसोफर बन गया, राइट। तो कार्ल मार्क्स ने ये बोला था कि स्टेट इज जस्ट एन एजेंट,
State is just an agent for the loot of capitalism. ठीक है, हम स्टेट को लेजिटिमेट मानते हैं कि हाँ मेरे मोदी जी हैं, भाइयों बहनों वाले मोदी जी हैं, है ना। लेकिन मोदी जी किसकी गोदी में खेल रहे हैं या किसको गोदी में खिला रहे हैं? किसी और को। मनमोहन का मन किसने मोह लिया था? सोनिया गांधी ने नहीं मोहा था। किसने मोहा था? किसी और ने। समझ रहे हो ना। तो प्रेम प्यार से ये लोग काम चलाते हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टीज, इनके कॉफर्स में पैसे जमा होते जाते हैं और हम लोग जिनी कोएफिशिएंट जैसी बातें करते रहते हैं। जिनी कोएफिशिएंट इज द मेजर ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री। समझ में आया? तो ये जो लाइंस ऑफ एडवांसमेंट है, दे आर रनिंग कॉन्ट्रेरी टू what is given in the constitution is what I am trying to explain. Right, now that I have explained you in depth, you would understand ki what is the exact meaning of, you would be able to memorize it better is all I would say. समझ में आया? तो धीरे धीरे से रोड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी रिलायंस की बात अगर करें, रिलायंस ने दिल्ली में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सिर्फ 3 साल चलाई, 3 साल उसको ऑपरेट किया। डीएमआरसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, अनिल अंबानी की कंपनी को। क्यों दिया? क्योंकि अनिल अंबानी वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग ऑपरेटेड मेट्रो रेल सर्विसेज सो एज टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मुंबई नागपुर पुणे और मुंबई पुणे मेट्रो लाइन। जब इनके कंडीशंस आती है ना, जैसे आज यूपीएससी की कंडीशंस आई हैं, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसी भी प्रोजेक्ट को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसमें लिखा होता है एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और बिडिंग मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग ऑपरेटेड मेट्रो लाइन फॉर 3 years। अनिल अंबानी ने क्या किया? रिलायंस इंफ्रा ने 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के टैरिफ को उतना रखा जितना डीएमआरसी को, जितना दिल्ली सरकार को एक्सेप्टेबल था, जितना लोगों को चुभेगा नहीं। कौन सी लाइन? सबसे छोटी लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, जस्ट टू गेट अ स्टैम्प कि हाँ देखो मैंने मेट्रो रेल चलाई है। फिर उसके बेसिस पे मुंबई में एक छोटे लेवल के कैपिटलिस्ट कंपनी को, जो कि इक्वली एलिजिबल थी बट उसके पास वो 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, उस कंपनी को साइड कर दिया, रिलायंस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मुंबई पुणे रेल लाइन बनाने के लिए। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये सोशलिस्ट वाला जो प्रिंसिपल है हमारे प्रियम्बल में, ये कहता है कि लाइंस ऑफ एडवांसमेंट, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो चाहे कुछ हो, टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि एक फर्जी सर्टिफिकेट कि हाँ उन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल लाइन को ऑपरेट किया है। जैसे ही 3 years कंप्लीट होने के वर्ज पे आए, द मोमेंट दोज 3 years which is the minimum criteria for any company to apply for metro rail project in Mumbai were on the verge of completion, Reliance Infra started increasing the tariffs which were unacceptable to the people commuting from New Delhi metro station till airport, New Delhi airport. So the DMRC said, you go away, we will manage it ourselves. Reliance said, okay, we needed a certificate, we got it, Tata, bye bye. राइट, इस तरह से कंडीशंस को मैनिपुलेट किया जाता है। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, मैं ये क्यों समझा रहा हूं? माय ओनली थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड कि यूपीएससी के इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे। मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूं पहले। जस्ट अ मिनट। This was prepared by me after a lot of reading and understanding in the year 2018. Just 1 minute. I'm just trying to validate my point here. Some of the things that are given in this are identical to what we have studied so far. Nonetheless,
यहाँ पे पढ़ो. Is it fairly decipherable for everyone? India has unconsciously converted itself into a capitalistic democracy. This paradox of capitalistic democracy कि हम लोग पूंजीवादी हो गए, कैपिटलिज्म को हमने एंट्री दे दी विदाउट amending the constitution, without deleting the word socialist in the very first section of our constitution, that is preamble. Isn't it illegal? Isn't it the word ultra vires that I taught you? क्या ये अल्ट्रा वायर्स दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि धच्चियां उड़ा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन की और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको डिलीट तक नहीं किया? समझ में आया? तो ये मेंस ओरिएंटेड एनालिसिस है. Capitalist democracy manifests itself in the fact that if parties want to come to power, they have to secure the trust of both the private investors, Adani, Ambani, ठीक है, और नादान आदमी को ये बोला जाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे. इन्वेस्टर को, अदानी अंबानी को ये बोला जाता है कि जरा हेलीकॉप्टर देना, दिल्ली जाके आना है ताकि मुझे टिकट मिल जाए. गुजरात से दिल्ली का सफर एयरप्लेन से, प्राइवेट चार्टर्ड एयरप्लेन से एक मोदी नाम का आदमी था, उसने तय किया. और फिर जब हर बार इलेक्शन आते हैं तो ये मोदी नाम का आदमी हर बार उनसे पैसे लेता है. रॉबर्ट वाड्रा से भी लिए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इनसे पैसे लेती हैं. तो कैपिटलिज्म की सपोर्ट चाहिए है, जरूरी है. क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि पहले जो करप्शन होता था ना वो फिर भी अच्छा होता था. मैं उसको वैलिडेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को. पहले जो करप्शन होता था कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो 800 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा. अब वो करप्शन कम हो गया है. टिकट कटिंग एज लेवल पे जो करप्शन है वो कम हो गया है. अब पता है कहां करप्शन है? राफेल उड़ाना है, महंगा कर दो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा. कॉफिन स्कैम, राजीव गांधी ने क्या किया, सॉरी बोफोर्स स्कैम, बोफोर्स की तोप खरीदनी थी तो महंगे दाम पे खरीद ली, तुम्हें क्या पता लगेगा. हद तो ये हो गई कि कॉफिन स्कैम, जो हमारे करगिल में सोल्जर्स की डेथ हुई उनके लिए जो कॉफिन्स खरीदे गए महंगे दाम पे खरीद लिए, तुम्हें क्या पता लगेगा, राइट. आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मिडिल लेवल का स्कैम है, फौजी भाइयों को पता लग ही गया. तो बिग टिकट करप्शन में ज्यादा फायदा होता है. स्पेक्ट्रम ऑक्शन सस्ते में कर दो, तुम्हें बोलो कि देखो तुम्हें सस्ते में टेलीकॉम सर्विसेज मिल रही हैं, तुम खुश, तुम्हें तो वैसे ही लॉलीपॉप चाहिए तू चूसने को, है ना. हम लोग ऐसे हैं, गलती उनकी नहीं है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से 200 साल में जेनेटिक कोड में वो दिक्कत आ गई है. क्या? मंदिर के बाहर यदि एक चप्पल पड़ी हो ना, उठा के भाग लेंगे हम. ये नहीं सोचेंगे कि दूसरी क्या करेंगे, दूसरी मिलेगी कि नहीं तो पहले का करेंगे क्या, सर में मार लेंगे. लेकिन फ्री का बहुत अच्छा लगता है. तो इसलिए दिक्कत ये हो गई है, वी डोंट इवन थिंक ऑफ आस्किंग द गवर्नमेंट एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द नेशन. एंड गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड दिस कि अगर पैसा लेना है तो व्यापारी से लो और गरीबों में फ्री की दारू, फ्री के कंबल, राशन, ये सब बांटते रहो और ये लोग वोट देते रहेंगे. और हद तो तब हो गई 15 लाख के झूठे वायदे कर दो. किसान को बोलो तुम्हारी इनकम डबल होगी 2020 तक दिख रहा है, नहीं होगी. 2019 में इलेक्शन है, ओ गलती हो गई, 2022 कर दो. क्या दिक्कत है? भूल जाएगा किसान. फिर उसी किसान की, उसी का चुनाव जीत के, उसी के वोट से इलेक्शन जीत के उसी किसान की लेनी देनी शुरू कर दो. कैसे? फार्म ऑर्डिनेंस लेके आओ जिसमें कि तुम प्राइवेटाइज करोगे. अब तुम्हारे पास तो कुछ बचा नहीं देने को, LIC बेचने पे आ गए हो तुम तो, डिसइन्वेस्टमेंट कर करके, कैपिटलिज्म ला के. अब उस किसान की जमीन के लिए ऐसा कानून बनाओ कि पेप्सी नहीं तो कोला उस किसान की जमीन को सस्ते में कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे खरीदना शुरू कर दे. समझ में आया? स्टेट का हॉलोइंग आउट. ध्यान से समझना जो मैं चीजें समझा रहा हूं. मैं क्यों समझा रहा हूं, तुम्हें लगेगा कि ये फालतू में पढ़ा रहे हैं सारा कुछ. यहां पे क्वेश्चन देखो, सारा कुछ मैंने अच्छे से डिटेल्ड वे में प्रिपेयर किया है. द सेटिंग अप ऑफ रेल टैरिफ अथॉरिटी टू रेगुलेट द फेयर्स विल सब्जेक्ट द कैश स्ट्रैप्ड इंडियन रेलवेज टू डिमांड सब्सिडी फॉर ऑब्लिगेशंस टू ऑपरेट नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स एंड सर्विसेज. जो लोग जाग रहे हो यस बोलो, जो लोग मर गए हो मर जाओ, फटाफट यस बोलो. कॉफिन तुम्हारे लिए भी खरीदने पड़ेंगे, नहीं तो फटाफट बोलो यस. Those who are liking it simply say I interested. इंटरेस्टिंग लिख दो, कुछ लिख दो मेरी हौसला अफजाई के लिए, ठीक है. मुझे तुम्हारे वोट नहीं चाहिए, नोट पहले मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
फटाफट आई लिख दो। नहीं लिख अच्छा लग रहा तो दोबारा से लॉगिन करो, तुम्हारा नाम चेंज करो और फिर दोबारा से लिख लो कि नॉट इंटरेस्टेड। आई लिखो, आई, यस छोड़ दो, कोई बात नहीं, यस तो तुम लिखते ही हो हर बार। देखो पॉइंट पता है क्या है, यूपीएससी ने क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने शुरू कर दिए। कहीं जोश जोश में ग्लास ना गिर जाए, पानी का है, किसी और चीज़ का होता तब तो फिर भी ठीक था, गिर जाता तो। नाउ टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सपीरियंस इन द पावर सेक्टर, डिस्कस इफ द प्रपोज्ड रिफॉर्म रेल टैरिफ अथॉरिटी बनाने की बात करी थी कांग्रेस ने जाते जाते। फरवरी 2014 वैलेंटाइंस डे के अराउंड इन्होंने ये तोहफा दिया था, ठीक है। तो रेल टैरिफ अथॉरिटी क्यों बनाई गई? क्योंकि रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की बात करी जा रही थी। प्राइवेटाइज ऐसा नहीं कि रेलवे के डब्बे बेच देंगे, नहीं, जो लाइंस है ना उनको ऑपरेट करने का। जैसे मैंने ये बताया कि दिल्ली में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को कौन ऑपरेट कर रहा था? रिलायंस कर रही थी। वैसे ही एक ट्रेन की पटरी जो है टाटाज को दे दी जाएगी। उसको ऑपरेट करने में, वो जो एक ट्रेन है उसको ऑपरेट टाटाज करेगा। सरकार की ट्रेन रहेगी लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल टाटाज का, अंबानी का, अदानी का। इसमें ये लिखा है 2014 का ये क्वेश्चन है कि रेल टैरिफ अथॉरिटी को जब रेगुलेट करेगी प्राइवेट ट्रेन्स को और सरकारी रेलवेज द्वारा चलाई जा रही ट्रेन्स को, उस वजह से रेलवेज के पास कैश तो है नहीं, इट इज ऑलरेडी कैश स्ट्रैप्ड। इट विल make the railways, Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes। जो ट्रेन बिहार से लेकर पंजाब तक चलती है उस पे तुम 5 रुपए भाड़ा है, अगर 5 rupees is the tariff, if you would increase it by 1 rupee you would be like seeing a धरना प्रदर्शन। इसलिए रेलवेज को सब्सिडी मांगनी पड़ेगी। Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit consumers, चलो छोड़ो, is expected to benefit consumers, is expected to benefit consumers, or if it is expected to benefit the Indian Railways or the private container operators। ये पार्ट को दोबारा पढ़ो। यूपीएससी पता क्या पूछ रही है कि जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म किए गए थे उसको ध्यान में रखते हुए तुम ये बताओ कि रेगुलेटर के होने के बाद किसको फायदा होगा? कंज्यूमर को फायदा होगा, रेलवे कस्टमर्स को, आपके और मेरे जैसे गरीब लोगों को, या फिर रेलवेज को फायदा होगा, या किसको? पावर सेक्टर के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बताओ। अब मैं तुम्हें शीला की जवानी की तरफ ले जाऊंगा। जब शीला दीक्षित ये चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली पावर सेक्टर को क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर बनाया जिसका नाम था DERC, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। इस एक्सपीरियंस को हर स्टेट में कॉपी किया गया क्योंकि ये पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के चंदा इकट्ठा करने के लिए बहुत कारगर है। DERC ने आगे ये कहा कि NDPL सरकारी कंपनी है, कुछ एरियाज में NDPL पावर सप्लाई करेगी, ओनली फॉर सप्लाइंग द पावर। NDPL ने किसको हायर किया? पावर सप्लाई के लिए टाटास। एक एरिया में दिल्ली में टाटा पावर सप्लाई करता है। तुम लोग यदि दिल्ली में रह के गए हो तो तुम्हारी लैंडलॉर्ड के साथ में डिस्प्यूट हुई होगी, ठीक है, टाटा पावर। दूसरी तरफ रिलायंस पावर। ये सोचा गया, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो भी कुछ रेल टैरिफ अथॉरिटी जैसा ही था। रेल टैरिफ अथॉरिटी जो अभी बनाने की, जो हमने क्वेश्चन में बात करी, 2014 में बात करी गई थी, अभी तक बनाई नहीं गई क्योंकि सरकार डरती है कि फार्मर्स जैसा प्रोटेस्ट रेलवेज में होगा तो सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं होगा, कहाँ होगा? पूरे इंडिया में होगा। क्योंकि रेल से पंगा लोगे तो निकाल देंगे, रेल में जाने वाले तुम्हारा तेल निकाल देंगे। ये सिर्फ किसान नहीं है जो चुपचाप बैठ जाएंगे, राइट। तो रिलायंस ने क्या किया, ये सोचा गया था, the professed goal was every time Reliance would ask for, Reliance initially agreed for 5 rupees per unit electricity supply to Delhi's population, Delhi residents. अब every time Reliance would seek a hike, it would have to seek the approval of Delhi Electricity Regulatory Commission। 5 rupees से 5.50 rupees करना है, take approval। Regulator was thought to be autonomous, independent, देवता,
ब्रह्मा जी का अवतार, ऑनेस्ट। रेगुलेटर में किसको पैक कर दिया गया? चापलूसों को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सम ऑफ देम वर ऑनेस्ट आल्सो, ठीक है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को लगा दिया गया। अब रेगुलेटर क्या करता था? शीला दीक्षित के कहने पे या सरकार के कहने पे हर बार ठप्पा लगा देता था। इंक्रीज करना है टैरिफ, कर दो, 6 रुपए कर दो, 7 रुपए कर दो। लेकिन कटिंग एज लेवल को लोगों को इम्यून रखा गया, लोगों को पावर 5 ही रुपए मिल रही है, खासकर बीपीएल वालों को, क्योंकि ये वोट देते हैं। पैसा कहां से जा रहा है? पैसा जा रहा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, जो दिल्ली के लोग जो टैक्स देते हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टैक्स मिलता है, या फिर क्या किया जा रहा था? ये जो एनडीपीएल है ये बॉन्ड्स इशू कर करके टाटा को पैसे दे रही थी। बॉन्ड समझते हो ना? एनडीपीएल बॉन्ड्स इशू करेगी, कर्जा उठाएगी, और या फिर बैंक से कर्जा लेके, लोन लेके, जो टैरिफ का डिफरेंस है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपीज में दी जा रही है, power is being supplied to the common people at 5 rupees per unit, whereas power's cost was increased to 7 rupees. 1 rupee being shared by political dispensation and 1 rupee going to Reliance. समझ में आया? ये क्या है? With the advent of privatization, please write down if you want to, with the advent of privatization, outsourcing of corruption is happening. समझ में आया? करप्शन को आउटसोर्स कर दो, प्राइवेट। अगर कोई जाएगा, अगर कोई बोलेगा या कोई बहुत ही ज्यादा फंस गया, तो वो अनिल अंबानी होगा, उसकी फ्लाइट का बंदोबस्त करा दो, वो गया लंदन, दंडनाडन। अगर कोई बोलेगा फंस जाएगा, वो होगा विजय माल्या, उसको विजय करार दे दो, भगा दो। अगर कोई और फंस गया, ललित मोदी, उसको भी भगा दो। लेकिन सरकार की छवि, भाइयों बहनों मैं चौकीदार हूं। समझ में आया? सुषमा भाई, मोदी जी के होते एक परिंदा पर नहीं मार सकता, ये दोनों कैसे उड़ गए? मतलब समझ में आ रही है चीजों का? इनको लोन दो, इनको लोन और चाहिए और दे दो, लेकिन इनसे अपना हिस्सा लेते रहो। अनिल अंबानी का बैंड आज बज रहा है, लेकिन बजाया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि फंडिंग कहीं ना कहीं जा रही है। समझ रहे हो ना? पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मिलती जाएगी। दिस इज लीडिंग टू प्राइवेटाइज। अब ये काम पहले कौन कर रहा था? एनडीपीएल। एनडीपीएल को बताया गया कि ये सरकारी कंपनी है, ये इनएफिशिएंट है, बाबू लोग काम नहीं करते। बोल रहे थे ना वो पिछले दिन प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में कि बाबू लोग, ये कौन सा कल्चर है कि बाबू लोगों को इतनी पावर हमने लोगों ने दे दी। He speaks a language that you would think ill about the IAS officers. You to know that IAS officers are honest also. He is using a language कि उसको कोई गरीब आदमी सुनेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ, बाबू लोगों को हमने पावर दे दी, राइट? इससे पावर छीन लो तो किसको दे दो? व्यापारी को। व्यापारी तो शरीफ लगता है, सूट बूट में, जेंटलमैन है, तभी तो भाग गया वो विजय माल्या वहां पे, फॉर्मूला 1 वाला। समझ में आ रही है चीजें? तो धीरे धीरे से ये लूट चल रही है। अब हमारी प्यारी यूपीएससी हमसे ये पूछ रही है कि कीपिंग द एक्सपीरियंस ऑफ दिस सेक्टर इन माइंड, कीपिंग द एक्सपीरियंस, सेटिंग अप ऑफ रेल टैरिफ अथॉरिटी, जो फेयर्स को रेगुलेट करेगी। जैसे पावर सेक्टर के रेगुलेटरी कमीशन ने, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने टैरिफ्स को रेगुलेट किया था, तो उससे गरीब लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को जो पावर दी जाती थी वो सस्ते में दी जाती थी। इसीलिए एनडीपीएल को सरकार से पैसे मांगने पड़े, वैसे ही रेलवेज को पैसे मांगने पड़ेंगे। तो इसमें किसका फायदा होगा? क्या यूपीएससी यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रही? क्या यूपीएससी यहाँ पे लेफ्टिस्ट नहीं हो रही? क्योंकि वो चाहती है कि तुम एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट बनो, तुम ये चीजों को समझ के आओ कि किसका फायदा होगा। तुम अपने आंसर में ये चीज को हाईलाइट करो, बुर्बकों की तरह मत लिख के आ जाओ जो बाजाराम और श्रीराम और गंगाराम में पढ़ाया जा रहा है, राइट? समझो बात को, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की, राइट? तो यहाँ पे समझो इसको। ये देखो, कहाँ गया वो? सॉरी, is it gone? No, it shouldn't be. ये रहा, ठीक है। अब रेगुलेटरी कमीशन से एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम था केजरीवाल। पॉलिटिक्स में वो पैदा ही हुए थे, ठीक है, वैसे बहुत पुराने हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे, ही वॉज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे ये डिटेल चाहिए कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो चिट्ठा दिया गया होगा, जिसको दिल्ली, जिस बेसिस पे चार्टर्ड जो भी अकाउंट दिया गया होगा, अकाउंट की कैसे टैरिफ का, कोल का कॉस्ट बढ़ा, कोयले का कॉस्ट बढ़ा, जो आप 5.5 रुपए मांग रहे हो,
कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके बेसिस पे दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन कन्विंस हो गया कि हाँ रिलायंस की बात सही है, हाँ टाटास की बात सही है, ये बढ़ाना चाहिए, टैरिफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्यों ऐसे बार बार हर बार रिक्वेस्ट करी गई और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन देता गया, डीईआरसी ने सरकार को बोला अप्रूव कर दो, मेरे को ये रिकॉर्ड ठीक लग रहा है। केजरीवाल ने बोला कि आरटीआई के अंडर हमें ये दो, तो पता है सरकार ने क्या प्ली ली? सरकार ने बोला कि रिलायंस इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू आरटीआई। केजरीवाल ने बोला कि अगर कोई कंपनी का 90% ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर सरकार उठा रही है, चाहे वो एनजीओ हो या प्राइवेट कंपनी हो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखानी पड़ेंगी। इन्होंने नहीं दिखाई। फिर केजरीवाल 49 डेज के लिए गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने रिलायंस को यह कहा डीईआरसी के जरिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो। मुकेश अंबानी की कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दी। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर किया गया। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सूट बूट वाली सरकार नहीं है। समझ में आया? तो ये जो एक्सपीरियंस है, अब इसको तुम यूपीएससी तुमसे ये डिमांड कर रही है, जस्ट ट्राई टू impose or superimpose this experience on the rail tariff authority, that if ever a railway tariff authority will be created, is it going to benefit customer? ना, कस्टमर तो जो है उसको पता ही नहीं, क्योंकि मेरा क्या मुझे क्या। एक बात बहुत अच्छी कही उस प्राइम मिनिस्टर बंदे ने कि हमारे यहाँ पे एक डिजीज है, मेरा क्या मुझे क्या। तुम में से कुछ लोग मध्य प्रदेश में होंगे, तुमने उसके लिए अप्लाई नहीं किया, व्यापम स्कैम में क्या हुआ, तुम्हें क्या पड़ी है। जब यूपीएससी में होगा तब तुम धरना देते मिलोगे, राइट। तो कंज्यूमर्स, इंडियन रेलवेज और प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर्स, किसका फायदा होगा? यूपीएससी इटसेल्फ इज डिस्ट्रस्टिंग द स्टेट हियर। नाउ हमने जब प्राइवेटाइजेशन वगैरह करा ना, अनकॉन्शियसली करा, क्योंकि हमारे देश की मजबूरी थी। मैं तुम्हें इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस भी समझा रहा हूं। एवरीथिंग दैट आई से हियर हैज गॉट अ रेलेवेंस फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम। पॉइंट को समझो यहां पे कि पहले जब स्टेट होता था तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल होता था। यहां पे करप्शन होती थी। 1952 में पहला स्कैम हुआ था, एलआईसी स्कैम, जिसमें मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा था, ब्यूरोक्रेट बच गया था। सारा कुछ आईएएस ऑफिसर्स वगैरह चलाते थे, सरकार के कंट्रोल में चीजें थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, बिजनेस वेंचर्स हों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, डैम्स हों, हॉस्पिटल्स हों। फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया गया। प्री लिबरलाइजेशन एरा में प्री 1990 अवतार में स्टेट वाज द रूल सेटर, स्टेट वाज द रूल इंप्लीमेंटर एंड स्टेट वाज द प्लेयर इटसेल्फ। रूल कौन बनाता था? स्टेट बनाती थी, सरकार बनाती थी, और सरकार के ही ऑफिसर्स पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट चलाते थे। करप्शन तब भी होती थी, लेकिन तब पकड़ी जाती थी तो मंत्री जाता था, ब्यूरोक्रेट जाता था। आज अगर करप्शन पकड़ी जाती है तो सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर शी करके उड़ जाता, तुम्हें पता भी नहीं लगता, राइट। मेरे जैसा आदमी एक ट्रैफिक सिग्नल बिना मास्क के क्रॉस नहीं कर सकता दिल्ली में। एक आदमी दिल्ली से जहाज लेके उड़ गया, ऐसा कैसे? और वो भी जहाजों वाला चोर, विजय माल्या। समझ रहे हो ना? अभी वो वापस भी आएगा, वो चुनाव भी लड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। कौन सा तंत्र है नहीं पता, जादू मंत्र है ये। इन पोस्ट लिबरलाइजेशन अवतार, स्टेट इज फंक्शनिंग इन अ लिमिटेड मैनर एक्सप्रेस्ड बाय फ्रेजियोलॉजी लाइक इंडिकेटिव प्लानिंग, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम उल्टा बोलना चाहिए, मिनिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। सरकार विड्रॉ करती जा रही है। जब जब फेलियर हुआ है, कोविड-19 हुआ हो या 2007-8 का क्राइसिस हुआ हो या फिर हर्षद मेहता स्कैम हुआ हो, हर बार ये इंसिडेंट्स ने, क्राइसिस ने, इकोनॉमिक या कोई और क्राइसिस ने ये प्रूव किया है कि प्राइवेटाइज करो, गलत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है, लेकिन रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, स्टेट स्ट्रांग होना चाहिए। जिस दिन स्टेट वीक हो गया उस दिन प्राइवेट सेक्टर तुम्हें बुली करने लग जाएगा। ये वही रिलेशनशिप वाली पैथोलॉजी है कि तुम करो, प्राइवेटाइज करो, जो बॉयफ्रेंड कहता है करो, जो गर्लफ्रेंड कहती है करो, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ करो। अगर ज्यादा सरेंडर कर दोगे तो फिर क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन। प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा ही करे। तुम अपने ख्याल मत सोचने बैठ जाना, टेक्स्ट निकाल के करने लग जाओ कहीं अपने लव्ड वन को। ध्यान से सुनो इधर, मैं बीच बीच में इसलिए बोलता हूं तो तुम लोग क्या है, टेक जनरेशन हो, भाग जाते हो। नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाना आसान बात नहीं है, सांस लेने को नहीं मिलता इसमें, समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं स्लो बोलूंगा, ऑफलाइन वाले टीचर्स यहाँ आते पढ़ाने
तो वो थोड़ा सा स्लो बोलते हैं, उनकी छुट्टी हो जाती है। रीज़न, वॉच टाइम गिर जाता है, स्टूडेंट भाग जाते हैं एकदम कि पढ़ा नहीं रहा है, सो रहा है ना। तुम खुद भले ही सोते रहो, कलयुग आ गया है, टीचर पढ़ाएगा, तेज जोश से बोलेगा, पसीना बहाएगा, पानी के 2-2 ग्लास पिएगा, स्टूडेंट सोएगा, तभी तो बढ़ेगा भारत। नाउ कमिंग हियर, state is functioning in a limited manner expressed by phraseology like indicative planning, rowing steering function, कि रोवर कोई और है, स्टीयर कोई और कर रहा है, हम सिर्फ स्टीयर करेंगे। घास काटने वाला होता है ना रोवर स्टीयर, तो वो वाला काम चल रहा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर रोइंग करेगा, ढोएगा प्राइवेट सेक्टर, स्टेट सिर्फ उसको स्टीयर करेगा, ब्यूरोक्रेट सिर्फ पॉलिसी बनाएगा। तो ये जो कल्चर है ये अमेरिका के लिए तो ठीक है बच्चों, क्योंकि वहां पे सब लोग पढ़े लिखे हैं, वो सरकार पे चेक रखते हैं कि सरकार क्या कर रही है, और वो लोग सबसे बड़ी बात है अमीर हैं। हमारे यहाँ पे सोशलिज्म कुछ सोच समझ के लाया गया था। क्यों? क्योंकि जो वो थियोरी थी ना, क्या, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि पानी ऊपर से गिराओगे नीचे गिरेगा, वो थियोरी इंडिया में फेल हो चुकी है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी, दैट इफ यू वुड एम्पावर अ फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट्स they would create growth, as the prime minister says these days कि व्यापारी पैसा क्रिएट करेगा तभी तो ग्रोथ होगी। This is what he said few days back during the budget discussion and all। तो वो थ्योरी पहले से फेल हो चुकी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे राहुल बजाज या बजाज कंपनी के ओनर या इन्होंने मिनिमम वेजेस देना नीचे बंद कर दिया। शार है, पानी नीचे गिरता है लेकिन पैसा नीचे नहीं गिरता, हमारी सरकार ये भूल जाती है। If you empower them, if you give them subsidized loans, they would create their own benefit without paying the wages to the poor people. That is why in 2006-07 the government realized कि साथ साथ नेशनल सोशल एक्शन प्लान चलना चाहिए। इधर से सरकार टैक्स से पैसा लेगी, मनरेगा वगैरह के लिए एलोकेट करेगी, ठीक है। प्राइवेटाइज किया जाएगा कंपनीज को, गरीबों के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे प्रोग्राम रोल आउट करे जाएंगे। अमीरों पे जो टैक्स लगाया जाएगा वो अमीरों को ही सब्सिडी नहीं दिया जा सकता, वो गरीबों को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग खुद गरीबों को नहीं देंगे। दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी विच वाज इन फोर्स ड्यूरिंग द नेहरूवियन एरा। क्लियर? अब क्या हुआ कि जब हम लिबरलाइज कर रहे हैं ना, तो लिबरलाइज करने के लिए एक और एवेटार बनाया गया। क्या एवेटार बनाया गया? क्या एवेटार बनाया गया? आइलैंड्स ऑफ ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस में कौन कौन आते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। The fact that scams are happening despite the regulators being there, socialism से privatization की तरफ जाना जरूरी था, लेकिन after having due checks and balances, after having checks and balances, is it lagging? It is not lagging at all from my side. It is working fine completely. ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस। अब ये चेक्स एंड बैलेंसेस करना इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन वगैरह के लिए जरूरी था, ठीक है। डन। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस को पावर देना जरूरी था। वी शुड हैव मेड देम ट्रूली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस वर नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट। आरबीआई में कौन बिठाया है? दास। किसका दास? मैडम का दास, शक्ति कांता। नाम है शक्ति कांता। अब कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि वो शक्ति वाले कांता हैं या दास हैं क्या। रघुराम राजन आए थे, उन्होंने नहीं सुनी, वो चले गए वनवास यूएस काटने, राइट? समझ रहे हो ना बात को। फिर उसके बाद उर्जित पटेल आए, उनको भी उड़ा दिया कि भैया तुम नहीं टिकोगे, तुम ज्यादा ऑटोनमस हो रहे हो। सेबी के चीफ लगाए जाते हैं चापलूस। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंडर भी स्कैम्स हो रहे हैं, ये सारा कुछ चलते रहता है, ठीक है। फिर लाया गया FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर FSSAI को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेट करने ही थे तो मेरी मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि दिमाग को खराब करता है वो कैसे निकला इन दी एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है। सही बात है, ये फंसाई हुई बॉडी है। ये जो हमारे रेगुलेटर्स हैं ये फंसाई हुई रेगुलेटरी बॉडीज हैं, समझ में आया? इनको पटा लिया गया ऑलरेडी। इसका नाम सबसे अच्छा लगता है मुझे, फंसाई।
ये ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसको फूड मिनिस्ट्री ने पहले से ही फंसा लिया, पैदा हुई थी पहले ही इसका बाल विवाह कर दिया गया। समझ रहे हो कि तुम कुछ नहीं करोगे। पोटाशियम ब्रोमाइड यदि तुम्हारे डोमिनोज के पिज्जा के ब्रेड में ज्यादा पाया जाता है, खाओ, मजे लो। जब पता लगेगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसको बोलेगा, 2 दिन छपेगी, उसके बाद खाना बंद कर देंगे, चौथे दिन फिर शुरू। रेगुलेटर्स आर नॉट फंक्शनिंग। हमारे यहाँ पे सोशलिज्म जब लाया गया, सोशलिस्ट पॉलिसी को जब गो बाय किया गया, गुड बाय कहा गया, तब रेगुलेटर्स भी अच्छे से नहीं क्रिएट किए गए। आपको पता है हमारे यहाँ पे ऑयल स्पिल होता है तो ऐसे ही लोग बोलते हैं अच्छा ओ ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी यूपीएससी वाले रखते हैं छुट्टी। यूएसए में जब ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ऑयल स्पिल किया था 2010-11 में, इतनी भारी कीमत रेगुलेटर ने वहां पे लगाई थी, रेगुलेटरी बोर्ड ने, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि ब्रिटिश पेट्रोलियम को अमेरिका के ही नहीं अपने सारे एसेट्स, ऑयल रिजर्व जो भी थे, काफी कुछ बेच के वो पेनाल्टी अदा करनी पड़ी थी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अच्छा मंत्री को चंदा दो 100-200 करोड़ पॉलिटिकल पार्टी फंड में जमा कराओ, जनता भूल जाएगी। यही होता है ना। तो ये जो चीजें दी गई हैं अच्छी अच्छी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी एट वर्क, इन दोनों को हमें बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। मैं चाहता तो इसको 5 मिनट में कवर कर देता, लेकिन मेंस के साथ में इसका एनालिसिस पहले ही चैप्टर से हम शुरू कर देंगे, मेंस ओरिएंटेड। समझ में आ रही हैं चीजें? Socialistic pattern of society means that basic criteria for determining the lines of advance must not be private profit but social gain, and that the pattern of development and structure of socio-economic relations should be so planned that they result not only in the appreciable increase in the national income and employment but also in the greater equality in the income and wealth. Secular, the principle of separation of state from religious institutions. In India, we have positive secularism, whereas Western democracies have negative or exclusivist concept of it. ठीक है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म होता है कि जैसे फ्रांस में है, ना तो आप बुर्का पहन सकते हो, ना आप क्रॉस पहन सकते हो, कोई भी रिलीजियस आउटवर्डली विजिबल सिंबल, पगड़ी, हेड गियर, टर्बन कुछ नहीं पहन सकते। हमारे यहाँ पे पता है क्या है? सर्वधर्म संभव। हमारे एंशियंट इथोस हमें ये गाइड करते हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अपनाया गया है। हम यूएसए के सेक्युलरिज्म, जो नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है, उसके अकॉर्डिंग यूएस गवर्नमेंट वहां पे $1 दान नहीं कर सकती, ना क्रिश्चियनिटी को, ना हिंदुइज्म को, ना इस्लाम को, ना जुडाइज्म को, ना किसी और रिलीजन को। हमारे यहाँ पे क्या है, हम सभी धर्मों को पैसा दे सकते हैं बट इक्वली। अब इसका फायदा है, यस इसका फायदा है। कैसे? हमारे यहां पे 80 करोड़ भारतीय हिंदू हैं, 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज हिंदू, इज द फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म। अब अगर वो 80 करोड़ लोग, इफ दोज 80 करोड़ हिंदूज वुड डोनेट 1 rupee ईच, we will have 80 crore rupees to construct a temple or to do anything related to Hinduism. On the contrary, we have got just 14 crore or 14% Muslims, roughly speaking 14%. If they would donate rupee 1 each, they would be able to collect only 14 crores. Would they be able to construct as lavish a temple, as lavish a shrine or mosque as Hindus would be able to? No. Would they be able to sponsor their Hajj pilgrimage for all the Muslims? No. Would they be able to carry forward their religious activities without money? No. So positive secularism has done well in keeping India a country which is having fraternity amongst whatever little fraternity is left, but it is because of positive secularism. अगर मेरे धर्म के लोग गरीब होंगे तो शायद मैं रॉयटस हो जाऊंगा, है ना? अगर दूसरे का धर्म और प्रगति करता जाएगा, प्रोग्रेस करता जाएगा, तो वो हेट्रेड क्रिएट करेगा। इसलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट minorities in India are under abject poverty. So they made a provision wherein from the consolidated fund of India you can give money to all the religions in the country. Clear?
Is this clear to everyone? सो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट यूएस में या फ्रांस में क्या है, नेगेटिव. वहां पे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मनी कैन नॉट बी गिवन टू एनी रिलीजन व्हाटसोएवर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? I'm so sorry. Oh. Yeah, is this clear? Supreme Court held that secularism is an integral part of the Constitution's basic structure. Right? Now, coming here to this part, Republic, a state in which supreme power is held by the people and their elected representatives and which has an elected or nominated head of the state. इसको Republic बोला जाता है. Saudi Arabia, an absolute monarchy, crown prince, ये सारा कुछ. ठीक है? तो democratic, a democratic polity is based on the doctrine of popular sovereignty, that is people will decide how they want to be governed. Republic क्या होता है? जहां पे टॉप मोस्ट लीडर जो होता है वो इलेक्टेड होता है. हमारे यहाँ पे रिपब्लिक है. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक आर सिटिंग इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, रिपब्लिक का मतलब ये है. ठीक है. नाउ सऊदी अरेबिया वो मोनार्की है. सऊदी, अब ब्रिटेन क्या है? इज ब्रिटेन अ रिपब्लिक? नो, क्वीन इज देयर. ठीक है. तो गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और नॉमिनेटेड हेड होता है. इलेक्टेड और नॉमिनेटेड. तो रिपब्लिक का मतलब क्लियर होना चाहिए. हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे वहां पे ये प्रोविजन बना दिया गया था हमारी कंट्री में 26 जनवरी 1950 को कि अब से हमारा जो टॉप मोस्ट लीडर है वो इलेक्टेड होगा. डेमोक्रेटिक पॉलिटी ये हो गया. डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. वी हैव गॉट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे मेक द पॉलिसी ऑन आवर बिहाफ. डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे होनी चाहिए? पंचायती राज में. People, where all the people, all the voters are consulted before making any policy. Okay, so this is there. All right. तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे एक बार इसी वे में, इसी रिगर के साथ में, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें इसमें समझाने को हैं. एक और ये इवोल्यूशनरी ट्रेजेक्ट्री है और ये सारा कुछ है. बट आई अश्योर यू दैट मेंस ओरिएंटेड एनालिसिस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय कोर्सेज हियर. ठीक है. We'll continue tomorrow. I have another class of economic survey today, so that's why. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Neha, are you planning to write the exam in 2021? आंसर राइटिंग के लिए हमारी वेबसाइट पे एक फ्री इनिशिएटिव चलता है, मेंस ड्रिल. क्विकली सर्च ऑन गूगल मेंस ड्रिल, DRILL, मेंस ड्रिल, JV's मेंस ड्रिल. You will be directed to our website and you can write an answer or two over there from today itself. Start writing. All right, so this was all. Thank you guys. Bye bye. Thank you everyone.